Okay, sir. Hello and good morning to all my dear students. How are you all? I hope all of you are doing well and all of you are going with chapter number 11th also in a well and proper way, because still yet we have completed 3 important P's of marketing management, right? There are 4 P's of marketing: product, price, place, promotion. 4 P है. Product. In product, we have discussed branding, labeling, and packaging. Then after, price and factors affecting price. Then after, physical distribution or place, in which we have discussed the meaning of physical distribution, the meaning of place mix, and we have discussed that various what are the various levels of physical distribution and what are the main important decisions of physical distribution, right? Now, today we are going to start the 4th important element of marketing management, which is promotion. After deciding the channel or level of distribution, we have to go with the promotion part of marketing management. There are 4 important elements of marketing, 4 important pillars of marketing. Number 4th pillar is promotion. Promotion is related with the activities that aim to increase the sale of product. The activities that are designed or planned to promote the sales of the product of company. ठीक है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है. The promotion element of marketing mix is concerned with the activities that are undertaken to communicate with customers and distribution channels to enhance the sales of firm. एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट का प्रमोशन सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी होता है. इट मींस मैन्युफैक्चरर यूज प्रमोशनल टूल्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स as well as to attract wholesalers and retailers. उनको भी तो अट्रैक्ट करना जरूरी है, बिकॉज कंज्यूमर विल बाय ओनली व्हेन द प्रोडक्ट इज अवेलेबल विद होलसेलर एंड रिटेलर. तो हमें होलसेलर और रिटेलर को भी अट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है that the tools of promotion are used to communicate with both the groups. Which 2 groups? Customers as well as the intermediaries, or we can say the distribution channels. Now, why we need to communicate with them? Because we want to enhance the sale of our product. हमें अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है. वी वांट टू बूस्ट अप द सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो हमें कम्युनिकेट करना है. तो द कम्युनिकेशन पार्ट इज रिलेटेड विद प्रमोशन, और प्रमोशन में सारा काम जो होता है वो इंफॉर्मेशन देने का होता है कंज्यूमर को. आगे देखिए, बहुत सिंपल एलिमेंट है ये. The promotional communication aims at informing and persuading the customer to buy the product and informing him about the merits of the product. It means we are initially using promotion to inform the consumer about our product. We need to inform the consumer that we are providing this type of product. Our product is available in the market at this price. ये तो information हो गई. Along with informing that them, we are trying to persuade them to buy the product. It means we are trying to influence the consumer for our product. We are trying to attract the consumer towards our product. Okay, so the promotional tool is basically used for 2 purposes. 2 purposes are informing the consumers about the availability of product, and number 2, persuading the consumers to buy the commodity. Now have a look. मिक्स का तो हमने बात की थी. इन केस ऑफ एनी मिक्स, व्हाट यू आर सपोज टू डू, मिक्स है यानी ऑल द डिसीजंस किससे रिलेटेड, जो भी वर्ड आगे आ गया है. तो प्रमोशन मिक्स मींस taking all the important decisions related with promotion of the product. So it refers to all the decisions related with promotion of sales of products and services. Product और services की promotion और sales से related जितने भी decisions है, all these decisions are a part of promotion mix. Now have a look. Important decisions of promotion mix are selecting the advertising media. You need to decide the advertising media which you are going to finalize. Selecting the other promotional techniques, using publicity measures and public relations. ये public relations क्या होता है आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. Now have a look. The various tools and elements available. There are various tools and elements available for promotion. If we want to promote our product, then we have many options, right? These are adopted by firms to carry on its promotional activities. The marketer generally chooses a combination of these tools. बहुत सारे tools है. Marketer क्या करता है, इन tools का एक best combination select करता है जिससे वो अपने product का easy promotion कर सके.
Now, everyone, you have to keep it in your mind that as there are 4 elements of marketing mix, again, there are 4 sub elements of the 4th element of marketing. It means if we talk about the elements of marketing mix, number 1 was promotion, number 1 was product, number 2 was price, number 3 was physical distribution, and number 4th is promotion, right? तो ये जो 4th एलिमेंट प्रमोशन है, इसके खुद के 4 पार्ट हैं. प्रोडक्ट के 3 पार्ट्स थे, प्राइस का कोई पार्ट नहीं था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पार्ट नहीं था, बट प्रमोशन के आपको 4 टाइप्स पढ़ने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 4 टूल्स हैं जिसकी हेल्प से प्रमोशन किया जाता है. इट मींस प्रमोशन मिक्स के अंदर ये चारों चीजें आएंगी. कौन कौन सी 4 चीजें आएंगी, नाम देखिए जरा. एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशंस. एडवर्टाइजिंग यू ऑल ऑलरेडी नो क्या होता है एडवर्टाइजिंग, हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको. देन आफ्टर सेल्स प्रमोशन, द टूल्स यूज्ड फॉर प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट. देन आफ्टर पर्सनल सेलिंग क्या होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर. एंड पब्लिक रिलेशंस. नाउ इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन अप टू दिस पार्ट, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी. No? All right then. Have a look everyone. The first tool of promotion mix. किसका first tool पढ़ रहे हैं? Promotion mix का. हमारा main topic चल रहा है marketing mix. There are 4 elements of marketing mix and we are discussing the element number 4th, that is promotion. And we have discussed that promotion itself includes 4 important elements. Number 1 is advertising. अब आप सबको पता है advertising क्या है. एक ऐसा टूल जिससे कंपनी कस्टमर को प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में बताते हुए प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना. हर एडवर्टीजमेंट आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है और साथ में आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, इसको लैंग्वेज फॉर्म में समझिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको यही डेफिनेशन समझ के लर्न करनी पड़ेगी. It is a paid form of non-personal presentation and promotion of idea, goods or service by an identified sponsor. Paid form है non-personal presentation का, यानी आपने अपने प्रोडक्ट को इम्पर्सनल वे से. इम्पर्सनल क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि मैं खुद बायर तक नहीं गई. इफ आई एम गिविंग एडवर्टीजमेंट ऑफ माय प्रोडक्ट, तो मेरा वन वे कम्युनिकेशन है. मैं सिर्फ एड में प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता रही हूँ, पर्सनली उससे जाके मिल नहीं रही हूँ, है ना. तो इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन या नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. पेड फॉर्म इसलिए लिखा है क्योंकि इसके लिए मैंने पैसा दिया होगा, प्लस कस्टमर से भी लिया होगा. आपने पढ़ा था ना प्राइसिंग फैक्टर्स में, लास्ट पॉइंट, प्रमोशनल टूल्स यूज. अगर आपने बहुत ज्यादा प्रमोशनल टूल्स यूज किए हैं, अगर आपने बहुत अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट किया है, तो इसका कुछ एक्सपेंस आपने भी दिया होगा और वो एक्सपेंस आपने कस्टमर से कवर जरूर किया होगा. तो इसलिए पेड फॉर्म है. 2 पार्ट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड. इट इज अ पेड फॉर्म. और प्रेजेंटेशन कैसा है, नॉन पर्सनल है. Presentation means I am presenting my product in front of customer, but along with presentation I am also trying to promote the sales of my product. So presentation and promotion. अब ये प्रेजेंटेशन और प्रमोशन गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, मेरे आइडियाज का भी हो सकता है. आजकल तो आइडियाज का भी एडवर्टीजमेंट होता है कि भाई मैं ऐसे, अब वेडिंग प्लानर है तो वो क्या करेगा, वो अपने प्लान्स, अपने आइडियाज का प्रमोशन करेगा और कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. और जनरली ये जो एडवर्टीजमेंट होता है ये हम एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू करवाते हैं, यानी किसी एक अच्छे रेप्यूटेड इंडिविजुअल से हम अपना एड स्पॉन्सर करवाएंगे ताकि पब्लिसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो. Now have a look. It is an impersonal presentation where a standard or common message regarding the merits, price, and availability of product and service is given by producer or marketer. ये एक इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है. इम्पर्सनल, हम पर्सनली नहीं मिल रहे हैं बायर से, राइट, जिसमें कॉमन मैसेज दिया जाता है प्रोडक्ट के बारे में सभी को. क्या क्या बताया जाता है, मेरिट्स, प्राइस, अवेलेबिलिटी और ऐसी कुछ चीजें. अब ध्यान रखना, जनरली क्या होता है, हम फ्लो में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ही लिखा करते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोडक्ट. तो ये मत लिख देना भाई मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी बात गलत हो गई. कोई भी एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट के डीमेरिट्स नहीं बताए जाते,
right? So we are just giving the information regarding the availability of product or services with the producer or marketer. Now, advertisement builds pull effect as advertising tries to pull the product by directly appealing to customers to buy it. यानी एडवर्टाइजिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ये क्या करता है, प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर को खींचने की कोशिश करेगा और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा टू बाय द प्रोडक्ट. Now, three important parts of above definition are explained. It means all these three parts are very important. Number one, it is a paid form. For it, the seller as well as customer is going to pay. Number two, it is impersonal. It means we are simply informing the consumers. We are not directly communicating with them. This information is given only in one-way form. We are not asking the customers related with anything, right? And third, it is given by some identified sponsors so that it's we can say power can increase, right? Influencing power can increase. Now have a look. The functions, advantages, merits, or we can say the benefits of advertising. Advertising की क्या-क्या फायदे होते हैं, ये हमें पढ़ना है. Advertising की क्या-क्या benefits होते हैं. Number one, reach. क्या होगा रीच का मतलब, क्या एडवर्टाइजमेंट एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है? बताइए, यस और नो, व्हाट डू यू फील? नो वन फील्स एनीथिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट? पहुंच सकता है ना एक साथ? एक ही एड बनाया और टीवी पे दे दिया तो वो जो लोग टीवी देख रहे हैं उन सब तक पहुंच गया. तो क्या कह रहे हैं ये, एडवर्टाइजिंग कैन रीच अ लार्ज मार्केट एज थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग देयर इज अ बेनिफिट ऑफ मास रीच. मास रीच का बेनिफिट है. ऑल इंडिया रेडियो पे सुना दिया, टीवी पे दे दिया तो बहुत जगह पहुंचेगा, है ना, कंट्री के अलग अलग कॉर्नर्स पे. चॉइस, ये पॉइंट बहुत ध्यान से लिखना और बहुत ध्यान से समझना. लिखना तो है ही नहीं, हमारा तो टर्म वन ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो समझना ध्यान से. ये कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सेलर के पास, मार्केटर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. देयर आर वेरियस मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग. आप चाहें जिस मेथड को यूज करें, ठीक है, तो वेराइटी अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग मीडिया से रिलेटेड. ये एक एडवांटेज है फॉर द मार्केटर. मार्केटर को ये मौका मिलेगा कि वो अपने अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया फाइनलाइज करेगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है. अब जैसे वॉल्स पे पेंट किया हुआ होता है, अलग अलग बिजी स्ट्रीट्स पे होर्डिंग्स लगाई हुई होती है, टीवी में एडवर्टीजमेंट दिया हुआ होता है, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, न्यूज़पेपर में दिया हुआ होता है. आपके लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल है आप उसको चूज कर लीजिए. तो यही इस पॉइंट में कह रहे हैं, देयर इज वाइड वेराइटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग, है ना, वाइड वेराइटी अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग उस वेराइटी को फाइनलाइज कर सकते हो. नाउ नंबर 3, लेजिटिमेसी. बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में जरूर आएगा. लेजिटिमेसी वर्ड का मतलब है एक, हम कह सकते हैं एक ट्रस्ट और एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाएगा. कैसे? एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट के बारे में बहुत बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट? बहुत बड़े लेवल पे कस्टमर्स को बताया जाता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. तो ऐसे में क्या होता है, कस्टमर्स को एक बिलीव होता है कि इतने बड़े लेवल पे कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठी इंफॉर्मेशन नहीं देगी, राइट? तो देखिए क्या लिख रहे हैं, the advertisement in advertisement the messages regarding the product or services are given publicly, so publicly to customers, so there is always a proof for it and customers believe that publicly company will not give false information of the product. Highlight kar lijiye beta everyone, I hope all of you are alert, so highlight the sentence, publicly the company will not give false information of the product. अब आपको ये सेंटेंस लिख के पूछ सकते हैं, द गिवन स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद व्हिच फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग. यू मस्ट हाईलाइट दैट दिस इज रिलेटेड विद लेजिटिमेसी. द कस्टमर्स फील कंफर्टेबल टू बाय अ प्रोडक्ट व्हिच इज वाइडली एडवर्टाइज्ड. यानी बहुत बड़े लेवल पे अगर एडवर्टाइजमेंट हुआ है तो द कस्टमर विल फील कॉन्फिडेंट, ही विल फील दैट यस द कंपनी मस्ट बी प्रोवाइडिंग सम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बिकॉज इट इज involved in publicity of the product at such a wide level. So we have discussed the 3 important merits of advertisement. Number 1, it has a wide reach. Number 2, a various choice is available. And number 3, legitimacy means that trust is developed among the customers. Now number 4, expressiveness. Advertising is having power to express and dramatize the use of product.
आप देखते हैं ना, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट हमें क्या करता है, प्रोडक्ट को यूज करना सिखाता है, प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में उसको यूज करके बताया गया है। आपको याद होगा बैटरी के जो ऐड आते हैं, बैटरीज के ऐड हो गए, ऐसे बहुत सारे एड्स हो गए जिनमें पिक्चर्स, एनिमेशंस, इन सबको यूज करके प्रोडक्ट को ड्रामेटाइज कर दिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इनफ अपॉर्चुनिटीज टू मार्केटर्स टू ड्रामेटाइज द मैसेज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स, colors, pictures, music, dance, etc. They can easily express the use of product through various techniques and can add multimedia effect also. बहुत सारी टेक्निक्स यूज करके प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है ये बताया जा सकता है, मल्टीमीडिया इफेक्ट्स भी डाले जा सकते हैं। नंबर 5 इज इकोनॉमी। ये कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट, माना तो ये जाता है, लोगों को तो ये लगता है कि एडवर्टीजमेंट कर दिया तो एक्सपेंस हो गया, खर्चा बढ़ गया। बट इफ वी टॉक अबाउट रियलिटी, एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेस द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, इट बूस्ट अप द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, और जब बूस्ट अप हो जाता है और इतने बड़े लेवल पे इसकी रीच होती है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की प्राइस, हम मतलब उस प्राइस में जो कॉस्ट का पार्ट आता है एडवर्टीजमेंट वाला, बहुत मिनिमम रहता है। पर यूनिट कॉस्ट अगर हम एडवर्टीजमेंट की देखें तो वो बहुत मिनिमम रहती है, बहुत माइनर रहती है। तो इकोनॉमी वर्ड का मतलब ही वही होता है जो फाइनेंशियली हमारे लिए फीजिबल हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज फेल्ट दैट एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट advertising is considered economical as compared to other promotional techniques because it reaches masses, and if we calculate per cost per customer, it is very low or nominal. ठीक है, कॉस्ट तो आता ही है, एक्सपेंस तो आता ही है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमिकल पड़ता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता। नेक्स्ट, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। एडवर्टाइजिंग बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कस्टमर्स। अगेन लेजिटिमेसी वाली बात ही है, कंज्यूमर को एक अश्योरेंस होता है कि स्पॉन्सर अगर क्लेम कर रहा है तो प्रोडक्ट बढ़िया ही होगा, है ना। अब हमने देख लिया ऐश्वर्या राय ये शैम्पू यूज कर रही है तो हमें लगता है भाई बढ़िया ही होगा क्योंकि ये स्पॉन्सर यूज कर रहा है। शाहरुख खान ने एशियन पेंट्स का ऐड दे दिया तो बस आधे कस्टमर्स को यही लग जाता है कि शाहरुख खान के घर पे तो एशियन पेंट से हुआ है, तो हमें भी वही लेना है, राइट। तो ये जनरल ट्रेंड है कि भाई कस्टमर को एक बिलीफ हो जाता है कि जो स्पॉन्सर है वो ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है और हम उस स्पॉन्सर के फैन है तो बस डेफिनेटली हम उस प्रोडक्ट को बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली ट्रू है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये उतना ट्रू नहीं है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द 6 important functions of advertising. Now have a look. Advertisement is always given by, क्या होगा आंसर, जल्दी बता दीजिए सभी बच्चों की तरफ से, अनम्यूट होके। यस, बी क्विक। कौन देता है एडवर्टाइजमेंट चारों ऑप्शन में से? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, बस, वेरी गुड, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। चलिए नेक्स्ट, जब भी इतना बड़ा केस स्टडी गिवन हो तो हमें क्या पढ़ना है, लास्ट का पार्ट, बट इस क्वेश्चन में कुछ लास्ट पार्ट है ही नहीं। ठीक है, हम देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप के बाद ढूंढे, अलग से जो लाइन गिवन होती है मैं आपको कहती हूँ वो पढ़िए, बट वो नहीं गिवन, तो देखिए ये लास्ट फुल स्टॉप के बाद से पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द होटल थ्रू व्हिच लार्ज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव पिलग्रिमेज टूरिस्ट all over the country and also abroad can be reached, informed and persuaded to use the incentive. ऊपर एक केस स्टडी गिवन है जिसमें कोई अट्रैक्टिव ऑफर है, आपको तो ये लास्ट पार्ट पढ़ते ही आंसर पता चल जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्म्ड एंड परसुएडेड दोनों पता चल गया तो ये तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही होगा। चलिए केस स्टडी पूरी आप रीड करके देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन रह जाए तो पूछ लीजिएगा। Now till yet we have completed 3 main elements of marketing mix and today we have started the 4th main element. आप सोच रहे होंगे मैम रिपीट क्यों कर रहे हैं बार बार, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें फिक्स हो जाए that there are 4 elements of marketing mix, right? And we have completed the first element of the 4th element of marketing. क्या बोला मैंने? We have completed the first element of the 4th element of marketing mix. Means we have completed about the advertisement part of promotion mix. Now have a look. Number 2, sales promotion. Sales promotion क्या है सुनिए। शॉर्ट टर्म के लिए इफ आई वांट टू बूस्ट अप माय सेल्स तो उसको बूस्ट अप करने के लिए जो जो तरीके यूज करती हूँ वो सब सेल्स प्रमोशन है। अगर मैं बात करूं कि नवंबर में दीपावली है, ठीक है,
अब मुझे नवंबर में दीपावली है, तो अक्टूबर मिड तक पुराना सारा स्टॉक क्लियर करना है, मैं पुराना स्टॉक क्लियर करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सितंबर में अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऑफर्स ऐड कर दिए ताकि शॉर्ट टर्म में मेरी सेल्स बूस्ट अप हो जाए। तो वो सारे मेजर्स जो भी मैं अडॉप्ट करूंगी, वेदर आई एम गिविंग डिस्काउंट, वेदर आई एम गिविंग बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, जो भी, वो सारी चीजें सेल्स प्रमोशन टूल्स में आएंगी। विंटर वियर्स पे आपने देखा होगा फरवरी मंथ आते आते ऑफर्स आने लग जाते हैं। फेब मंथ आता है तो उसमें ऑफर्स होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री का या 40% ऑफ का, ऐसे ऑफर्स दिए जाते हैं स्टॉक क्लियरेंस के लिए, क्योंकि पता है कि अभी नहीं क्लियर हुआ तो डायरेक्ट अगले साल डिमांड होगी और तब तक तो फैशन चेंज हो जाएगी, राइट। तो ये सेल्स प्रमोशनल टूल्स होते हैं, हम सब इसका पार्ट बने हैं, हम सब इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, sales promotion refers to short term use of incentive, short term is the keyword, ठीक है, ये short term के लिए होते हैं, और other promotional activities that stimulate the customer to buy the product, ऐसे short term measures जो customer को बढ़ावा देंगे to buy the product। जैसे हमने देख लिया इस शोरूम पे तो डिस्काउंट है, तो जरूर हमारा मन थोड़ा सा तो मचलेगा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट तो हमें खरीद लेना चाहिए क्योंकि इस पे अभी डिस्काउंट अवेलेबल है, राइट। आगे देखिए, सेल्स promotional techniques are very useful because they bring number one short and immediate effect on sale। इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, न्यूज़पेपर में अगर साथ में एक पैम्पलेट आ गया कि आज इस शोरूम में एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, उस शोरूम में दिन भर आप जाके देखो भयंकर भीड़ रहने वाली है, राइट। नाउ स्टॉक क्लियरेंस इज पॉसिबल विद सेल्स प्रमोशन, ये आपको फिलअप में दे सकते हैं। अगर आपको इमीडिएटली स्टॉक क्लियरेंस करना है ना, तो आप सेल्स प्रमोशनल टूल यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स प्रमोशनल टेक्निक इंड्यूस कस्टमर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेल्स प्रमोशनल टेक्निक, ठीक है। सेल्स प्रमोशनल टूल को यूज करके वी कैन अट्रैक्ट बोथ द ग्रुप्स। आगे देखिए, लास्ट वन, सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स हेल्प्स टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर, ठीक है। सेल्स प्रमोशनल टेक्निक हेल्प टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर। कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। आगे देखिए, बस पर्सनल सेलिंग है जो हम अभी नहीं स्टार्ट कर रहे। अभी मुझे आप लोग बताइए, आप में से किसके घर की कोई शॉप है या कोई बिजनेस है? रेज योर हैंड्स। जिनके घर का बिजनेस है, ट्रेडिंग होती है या सेल्स होता है, कुछ ऐसा, रेज योर हैंड्स। नो वन? पूरी क्लास में किसी के घर की शॉप नहीं है, किसी के घर का बिजनेस नहीं है? मनीष, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बताइए बेटा, क्या बिजनेस है? मैम गिफ्ट का। किसका? गिफ्ट्स का। गिफ्ट्स। गिफ्ट्स का। चलिए, तो क्या कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स दिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा? मैम फेस्टिवल टाइम पे। फेस्टिवल टाइम पे क्या क्या ऑफर रहते हैं बेटा, बताओ, हम सब आपकी शॉप पे आ जाएंगे। मैम उसमें 10% ऑफ हो जाता है मैम। फेस्टिवल टाइम पे 10% हाँ ऑफ हो जाता है, क्या पर्पस रहता है बेटा? मैम, कुछ तो मैम जो न्यू स्टॉक होता है वो, और जो मैम कुछ ओल्ड स्टॉक होता है उसके उस पे मैम 10 to 20% रहता है। तो टारगेट यही रहता है ना कि न्यू स्टॉक के बारे में कस्टमर को पता चले, 10 to 20% ऑफ है तो कस्टमर आएगा, है ना। और जब वो आएगा तो हो सकता है कुछ पुराना स्टॉक भी क्लियर हो जाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि आप फेस्टिवल टाइम पे सेल्स प्रमोशनल टूल्स यूज करते हो? यस मैम। चलिए, कहाँ है आपकी शॉप बेटा? मैम केम रोड, नाम? सागर म्यूजिक एंड गिफ्ट सेंटर। चलो, ओके मनीष, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल विजिट आई विल बी अवेलिंग अ गुड डिस्काउंट, इज इट ओके? यस मैम। चलिए, और किसी के घर पे? राघव बेटा, आई थिंक आपके घर की भी शॉप है, जहां तक मुझे पता है, आई एम नॉट सो श्योर। राघव, राघव कह रहे हैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, फिर आप आ जाओगे और आप कहोगे डिस्काउंट दे दो। यस राघव। चलिए, ऑडियो कनेक्टेड नहीं है।
So everyone have a look. Jokes apart, we have completed the two main elements of promotion mix. आपको यहाँ तक की सारी रीडिंग करके रखनी है, ठीक है? आप यहाँ तक इस चैप्टर को प्रिपेयर करके रखिए. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तक का तो आपको टेस्ट ही देना है. ये दो एडिशनल टॉपिक है, कर लेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 पार्ट्स. आपके सिलेबस से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा तो हटा ही दिया गया है. सेल्स प्रमोशनल टूल्स जो बहुत ज्यादा यूजफुल थे वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं. रियल लाइफ में प्रैक्टिकली क्या क्या सेल्स प्रमोशनल टूल्स यूज किए जाते थे वो आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा है. मैं आपको बता देती हूँ, डिस्काउंट देना, रिबेट देना, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर देना, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री देना, ठीक है? ये सारे सेल्स प्रमोशनल टूल्स ही होते हैं. प्रोडक्ट पे 50% एक्स्ट्रा या 20% एक्स्ट्रा लिख देना, ये सारे टूल्स सेल्स प्रमोशन के हैं. अटेंडेंस के लिए मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वहीं से हो जाएगी. ओके एवरीवन, हम सब मिलते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में. टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ.